हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। ये चैप्टर जो है 23 है, जिसमें हम इन्वायरमेंट अवेयरनेस के विषय में चर्चा करेंगे, यानी पर्यावरण जागरूकता के विषय में। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस में पढ़ते हो। अगर उनके सिलेबस में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि ये आपको पता ही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है समझाने की कोशिश किया जा रहा है। प्लस ये जो होता है आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here the most important chapter environmental awareness. The next topic here, the concept of sustainable development. There is a most important concept here, the sustainable development. The World Commission on the Environment and Development, the Brundtland is the commission submitted is a report entitled Our Common Future in 1987. The report is highlighting and prioritized the concept of the sustainable development. And sustainable development has been to define on the meeting the need of the present generation without a compromises and the need of a future generation. All the developmental activity involves some amount of environmental degradation. And what is required is to take into the account of damage to the environment as a result of development and strike a balance between the development and environmental protection. The aim should be achieve a sustainable development of people as a welfare and development. The primary concern there is how many people can ultimately be supported by their environment and what level of quality of life. The mainstreams are green scholar like a course and brown, dal and scorcher does not we make a sense of other or less stress on the sustainability of environment together with the development. The process of the mental streams are green are not on pollution but on a first year energy, and it is a resource may be a renewed. And a keep renewing is the second, they are best of change into the raw material and raw material into the waste. The best into raw material and recycling of waste into the raw material. But third here, the gross national production and it is a growth target and need not a south, but is a what should be a shouted to is a certification of the real human needs. The Greens say that is a growth means a cancer that threaten of the spread worldwide and destroy all the life. Accept our industry if it is on a small scale and it is for a purpose of self-sufficiency. They advocate of extensive of decentralization. There is the most important here. The concept of sustainable of development is more about the environment and less about the development. More about stability and the less about the change, and more about the things and want to less about the continually a material development, more about the non-expensive attitude toward the environment and less about the harshing its. The more about the small communities and the less about the large one. It is not a concept of development with the environmental, but it is a environment without growth. Indeed, ecological degradation should be stopped. But why should be a pace of development stop?
A display line is a use of environmental benefit go on long way for all round development. A scholar and activist has assessed that environmental degradation can be controlled and reversed to the only by the ensuring that is the parties causing the damage should be made accountable for their action and they should be a participate in improving environmental condition. And what is the needed in set of the norms which bearing to the demand of development and conversions of their environmental closer to the each other. यहाँ पर अगर बात आता है यहाँ पर अलंबनीय विकास की अवधारणा। देखिए, अलंबनीय विकास की अवधारणा का क्या आधार है? कहते हैं पर्यावरण विकास पर बने विश्व आयोग ने 1987 में हमारा संयुक्त भविष्य यानी हमारा संयुक्त भविष्य शीर्षक से अपनी रिपोर्ट दी गई थी और इस रिपोर्ट ने अलंबनीय विकास यानी अक्षय विकास की अवधारणाओं को उजागर एवं संचालित बनाया था। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि सभी चीज़ों के लिए रूल रेगुलेशन बनी होती है, लेकिन उस रूल रेगुलेशन सिर्फ किताबों में या जो है पन्नों पे ही नज़र आती है। वास्तविकता में यहाँ पर कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलता है। ये जो है परम सत्य है। अलंबनीय विकास की परिभाषा दी गई कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझने के किए बिना पूरा करना और सभी प्रकार की विकास क्रियाएं किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी होती है। कहते हैं आवश्यकता इस बात की विकास से होने वाले पर्यावरण चरण के ध्यान में रखा जाए तथा विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित भी किया जाए। लोक कल्याण और विकास का जो अलंबनीय संदर्भ प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। मूल चिंता यह है कि अंततः कितने लोगों की पर्यावरण एवं जीवन गुणवत्ता स्तर पर कितना सहायता किया जा सकती है। देखिए, ये बात जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था जिसको अलंबनीय विकास या लक्ष्य विकास के ऊपर रिपोर्ट तैयार किया गया था और इस रिपोर्ट में साफ बात कही गई थी कि पर्यावरण के लिए कितना किया जा सकता है। देखिए, आपको पर्यावरण के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण जिस कंडीशन में उनको छोड़ दीजिए। पर्यावरण स्वयं ही अपने आप को विकास करने में अग्रसर है, लेकिन अगर आप पेड़ पौधों काट दोगे तो वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं इंसानों के पास बुद्धि है, हाथ है, पैर है, तो ये अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग गया है इंसान। लेकिन इंसान का अस्तित्व तभी है जब ये जीव जंतु हैं, पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं। अगर ये जीव जंतु, पर्यावरण और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे जो है बहुत से विद्वानों ने इस पर अपना विचारधारा रखा है और उन विचारधाराओं में से कुछ विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत है। कहते हैं मुख्य धारा के विद्वानों का जोर प्रदूषण नहीं है, तो उनका जोर है कि किस प्रकार ऊर्जा और ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय बनाया जा सके और उनका निरंतर जो है नवीकरणीय हो। देखिए, बहुत से लोगों के यही विद्वानों का मत होता है कि हम नवीकरणीय के स्रोत कैसे ढूंढें। कहते हैं जब हमारे पास सुविधाएं होंगी तभी हमारा सोच भी प्रबल होगा, लेकिन हम जो है ऐसे जीव जंतु को नष्ट करते जा रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनका अस्तित्व ही नष्ट हो गया तो उसका कोई आधार रह नहीं जाएगा। कूड़े कचरे को कच्चे माल तथा कच्चे माल को कूड़े कचरे में अर्थात दोनों का जो है पुनः चक्रण किया जा सके। यानी विद्वानों ने इसी बात पर जोर दिया है कि कोई भी चीज़ों को हम कैसे पुण्य चक्रण करें। देखिए, विद्वानों की अपनी मत है, लेकिन यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही मत है कि जब तक हम इन चीज़ों का संरक्षण करना नहीं सीख लेते तब तक जो है किसी चीज़ का संरक्षण करना संभव नहीं है। चाहे आप पुण्य चक्रण करना भी क्यों ना सीख लो, अगर पेड़ पौधे ही नष्ट हो जाएंगे तो इससे क्या कर लोगे पुण्य चक्रण करके। कहते हैं पुण्य चक्रण तो किया जा सकता है, जो हमारे कुछ चीज़ें होती है, प्लास्टिक होती है, इन चीज़ों का, और हो भी रहा है इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने से बेहतर है कि वास्तविक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। द ग्रीन्स कहते हैं कि वृद्धि एक प्रकार का कैंसर है, एक ऐसा कैंसर जो पूरे विश्व में फैल सकता है और जीवन का नाश भी कर सकता है। वो उद्योगों को तभी स्वीकार करते हैं जब लघु स्तर पर हो तथा आत्मनिर्भर के लिए हो। वह व्यापक विकेंद्रीकरण की वकालत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। द ग्रीन्स ने सही कहा है और सही बात कहा है कि ये देश के लिए कैंसर के रूप में है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। कहते हैं इससे जीवन का ही नाश होगा। कहते हैं अगर आपने उद्योग स्थापित किया है तो उसको लघु उद्योग पे स्थापित कीजिए। बड़े बड़े उद्योगों की क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन आवश्यकताएं तो तब बढ़ जाती है जब जनसंख्या बढ़ती है या लोगों की लालच बढ़ती है, सरकार के जो है पैसे की आवश्यकता बढ़ती है, तो बड़े बड़े कंपनियों को भी निमंत्रण देती है, बड़े बड़े कंपनियों से जो है इलेक्शन में अच्छे खासे पैसे सुलती है। तो ये सारी बातें यहाँ केंद्रित होती है कि इससे हमारा पर्यावरण को ही नुकसान पहुँचता है।
अलावनीय विकास की संकल्पना विकास के कम और पर्यावरण के लिए अधिक है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आती है कि स्थापितों के लिए अधिक, पर्यावरण के लिए कम, आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए अधिक और भौतिक विकास की निरंतरता के लिए कम, पर्यावरण के शोषण के विरुद्ध अधिक तथा इसके प्रयोग के प्रति कम तथा छोटे समुदाय के हितों में अधिक तथा विद्य समुदाय के हित के लिए प्रति कम रुझान रखती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण शोषण के विरुद्ध जो है हमें कदम उठाने की आवश्यकता है, और यह पर्यावरण के साथ विकास की संकल्पना नहीं है, अतुल विकास के बिना पर्यावरण को संकल्पना ही है। वास्तव में जो है पारिस्थितिकी का संचरण रुकना चाहिए, यानी अगर नहीं रुका तो आने वाला समय में इंसान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन विकास की गति में रुकावट क्यों? विकास करना कोई बुरी बात नहीं, विकास करना चाहिए, लेकिन विकास अगर आप किसी दूसरे चीज़ों को नष्ट करके कर रहे हो तो इसका मतलब वो विकास नहीं हुआ है, वो सिर्फ आपकी लालच की भेंट चढ़ा है। पर्यावरणीय लाभों का जो अनुशासित प्रयोग जो चरमुखी विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। विद्वान तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं का कहना है कि पर्यावरण क्षरण जो है पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले लोगों को उनकी हरकतों के लिए उत्तरदायी ठहराकर उन्हें पर्यावरण स्थिति को सुधारने में लगाकर ही नियंत्रण किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि ऐसी नियम वाली कि विकास की मांग तथा पर्यावरण की अनिवार्यता को एक दूसरे से निकट ले जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कुछ लोगों का विचारधारा है कि बहुत से जो है आम लोग इसको जो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आम लोगों का कोई दायित्व नहीं होता, आम लोग नहीं करते हैं, ये आपको भली भांति समझ जाना चाहिए। आप भी आम इंसान हो, क्या आप पेड़ पौधों को ऐसे ही काट रहे होते हो? ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों को तो वो लोग काट रहे होते हैं जिनको बड़े बड़े फैक्ट्री चलाने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता होती है। ये लोग तो पेड़ पौधों को ऐसे काट के ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं जैसा इसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े घर बनाने के लिए, बहुत ही जो है शहर बसाने के लिए लोगों ने ना जाने कितने पेड़ पौधों को नष्ट ऐसे ही कर दिया। आपने देखा होगा कई जगहों पर जो है बस अड्डे बनाने के लिए, रेल मार्ग बनाने के लिए, सड़क मार्ग बनाने के लिए एकड़ से एकड़ और कई तरह की भूमियों को जो है नष्ट तहस नहस कर दिया गया। तो इसका कारण क्या है? जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। लेकिन जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या के साथ तो है, लेकिन सरकार को यहाँ पर बुद्धिमत्ता का प्रयोग देखना चाहिए। कहते हैं पेड़ पौधा से किसी को नुकसान तो नहीं होती है, लेकिन जो है जीवन को जो है नष्ट करने के लिए अग्रसर रहेगी। The next topic is a national and international effort. That is the most important topic arrive here, a national and international effort here. In India, the environment awareness had gained importance in 1970s after the UNA is sponsor a conference on environment in the Stockholm in 1972. India's government took many environmental friendly activities. A Ministry of Environment and Forest are established and the law were enacted to the environment protection in 1986. Objective of Indian National Environment Policy here was the starting. The first point here, a conserve and development safely, a healthy and productivity, and the systematically is a certifies of environment. And second here, upgrade development and manage rural and urban settlement to enhance the equality of life. And third here, plan is in development and sound ecological principle with the environmental impact assessment and incorporating appreciate to the environmental safety guard and promote to environmental safety technology, recycling of resource and utilization of the waste. And next year, the conservation of the biotic diversity in a country by the creating natural resource and sanctuaries for a specific habitat such as the mountain, rainforest, pasturage and desert, wetland, lake and wedges and mangroves, estuaries and the lagoons as the island. And the next year, safeguard the environment within the national maritime and exclusive is economical zone. And involved environmental norms and established effective mechanism for monitoring, surveillance and the connection for the dissemination of information. And next year, preserve the science, landscape as well as the historics and culture is momentums and there is a environment. And next year, promote environmental education at all level and create a public awareness. And encourage the research in environmental science and technology and social investigation to conserve and improve the environment and development aquatic is a manpower within the country of ecologists,
environmental scientists and planner and managers of the highest quality and recognize their work as an important component of national development. There is a most important here. यहाँ पर यही बात आया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो भी हमारे देश में खतरा का सबब बनता है उसके लिए हर तरह से नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन बनाई जाती है। और ये रूल रेगुलेशन सिर्फ बनाई नहीं जाती है, इसको किताबों में सम्मिलित भी किया जाता है, लोगों को पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो शून्य के बराबर होता है। आपने देखा भी होगा जब इंडिया में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था तो हर जगह साफ सुथरा करते मंत्री संतरी सब नज़र आ रहे थे, सब जो है बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उसके बाद सब के सब जो है शांत हो गए। आज स्वच्छ भारत के जो है कोई भी जो है प्रयास नहीं चल रहा है। आज भी जो है हर जगह देखिएगा तो गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कुछ समय के लिए ही कराई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो वो अच्छे के लिए बनता है, हमारे विकास के लिए बनता है, हमारे प्रोग्रेस के लिए बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात आती है कि यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पे बहुत बड़ी कदम उठाई गई थी पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। भारत में पर्यावरण जागरूकता के महत्व को 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो 1972 में जो है स्टॉकहोम्स में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कराने के बाद प्राप्त हुआ। भारत में पर्यावरण हित की कई गतिविधियां यह चलाई गई, पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन भी किया गया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण पर कानून भी लागू किया गया। देखिए, यहाँ पर बहुत बात आई गई है कि जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कदम उठाया गया। कहते हैं एक बार एक घटना घटी कि एक जो है गाय का जो है बहुत बुरा हाल था, इस पर जो है हर जगह हर व्यक्तियों को कॉल किया गया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो था सुनने के बराबर था। तो आप समझ सकते हो कि पर्यावरण के नाम से बड़े बड़े विभाग जो बनाई जाती है सिर्फ नाम मात्र का होता है। ये सिर्फ पैसा लेना जानती है और तनख्वाह वसूलना जानती है, लेकिन इनकी एक्टिविटी जो होता है सुनने के बराबर होता है। एक घटना आप हमेशा देखते ही होंगे कि रोडों पे जो होते हैं गाय भैंस बछड़े सब नज़र आ रहे होते हैं। क्या पर्यावरण संरक्षण के रिगार्डिंग इनका कोई उपाय नहीं है? क्या सरकार यही रूल रेगुलेशन बना रखी है कि जीव जंतु रोडों पे घूमते हुए नजर आएंगे और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट का कारण बनेंगे या कोई ना कोई जीव जंतु जो है इसी तरह मारे जाएंगे? तो ये सब पर्यावरण एक्ट के रिगार्डिंग एक खिलवाड़ रूल रेगुलेशन बनाई गई है जिसमें ना तो सेंट्रल सरकार कोई रिएक्शन लेती है न इंसान कोई रिएक्शन ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी है। आज देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें मिथ्या बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बातों को सिर्फ कागजी बातों में रखी जाती है, विभागों में ही रखी जाती है, वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि ये झूठ है तो कोई भी समस्या लेके आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको इसके प्रति कोई भी जो प्रतिक्रिया जो है सकारात्मक आपको नज़र नहीं आएगी। सारे विभाग के व्यक्ति जो होते हैं सिर्फ जो है 31 तारीख या 30 तारीख की वेट कर रहे होते हैं कि जैसे उनके जो है अकाउंट में पैसे आ जाएं। वो सिर्फ बैठ के जो है सिर्फ तपस्या करते रहते हैं, पैसे की वेटिंग करते रहते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी जो देखा जाए शून्य के बराबर होता है। सिर्फ नाम का ये विभाग बनाए गए हैं, इनका कार्य कहीं नहीं है, क्योंकि इसका मैंने भी एग्जाम्पल देखा है और जाना है और समझा भी है। भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य ये उल्लेखनीय है, कहते हैं सुरक्षा, स्वास्थ्य और संपादक और सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने वाले पर्यावरण के संरक्षण का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। दूसरी बात यही आता है ग्रामीण शहरी वस्तु के जो है जीवन साधन में श्रेष्ठता लाने के लिए जो है उन्हें सुधार तथा विकास करना ये भी उनका दायित्व रहता है। विकास को जो है पारिस्थितिक सिद्धांत पर आधारित करना था, उनके साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना और पर्यावरण सुरक्षा का समुचित प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी यहाँ पर रखता है। पर्यावरण सुरक्षा की तकनीकों को प्रोत्साहित करना और संसाधनों का पुनर्चक्रण करना तथा कूड़े का उपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात आती है। अगर बात यहाँ पर करें कूड़े करकट का, तो इस जो कहते हैं बड़े बड़े समझदार लोग भी कूड़ा करकट को तो ऐसे फेंक देते हैं जैसे कूड़ा करकट ना हो, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सामान हो। आप देखते भी होंगे राह चलते हुए गाड़ी से निकलते हैं और लिफाफा जो होता है या तो सड़कों के नीचे नज़र आती है या सड़कों पे फेंकी हुई नज़र आती है। तो ये बड़े बड़े लोगों के, समझदार लोगों की ये पहचान होती है। ठीक है, ये मिडिल क्लास के लोग ही इस तरह के जो है कारनामा करके दिखा रहे हैं और हमारा वातावरण
पर्यावरण को जो है दूषित कर रहे हैं। कहते हैं देश में जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्राकृतिक संरक्षण, पशु पक्षी विहार जैसे पहाड़ों, वर्षों, वनों और चरगाहों, मरुस्थल, जलीय क्षेत्र, झीलें और समुद्री तट, नदियाँ के मुहाने, समुद्री ढाले और द्वीपों को सुरक्षित रखना ही इसका दायित्व बना हुआ है। उसके पश्चात 6वां पॉइंट यही कहता है कि राष्ट्रीय समुद्री विशिष्ट जो है आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा रखना इसका सबसे बड़ा दायित्व बनता है। उसके पश्चात अगला ही पॉइंट यही बताता है कि सूचनाओं को जो है एकत्र कर एवं वितरण पर निगरानी करने हेतु जो है प्रभावशाली तंत्र स्थापित करना। ये भी बहुत बड़ी बात है कि प्रभावशाली तंत्र स्थापित करना। क्या ये सारे विभाग बनाए गए, क्या वो प्रभावशाली नहीं है? सिर्फ उसमें जो बैठे हुए जो बड़े बड़े अफसर हैं सिर्फ पैसा ही खाना जानते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं होता। कहते हैं ये सब बातें जो है अपने आप को दिलासा देने के लिए पर्याप्त होता है। वैज्ञानिक परिदृष्टि और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक तथा उसके परिसर की सुरक्षा करना ये भी दायित्व इसके अंतर्गत ही आता है। सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना तथा जनता में जागरूकता पैदा करना इसके ही अंतर्गत आता है। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोध को प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार हेतु समाजी रुचि को बढ़ावा देना भी इसी का ही सबसे बड़ी मुख्य उद्देश्य के रूप में देखा जा सकता है। अंतिम बात यही आती है कि देश में पारिस्थितिक वैज्ञानिक जो है पर्यावरणीय विज्ञान और योजनाकार एवं उच्च कोटि के प्रबंधनों की मानव शक्तियों के विकास करना और उनके काम को जो है राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना इसी रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है टॉपिक है ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है वचनबद्धता के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी बातें जो है वचनबद्धता के रूप में प्रदर्शित है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसमें से 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि आपको जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का सहायता करना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, दूसरी बार अगर टॉपिक सर्च करोगे तो त्रिपाण स्टडी सेंटर का टॉपिक नहीं आएगा। उस जगह पहले से जो मौजूद है यूट्यूब पे वीडियो वो आपके समक्ष नजर आएगा और त्रिपाण स्टडी सेंटर का वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको होम पेज मिल जाता है जहां पर आप जाके जो है वीडियो के सारे ऑप्शन देख सकते हो, जहां पर हर सिलेबस जो है हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो बना हुआ है जो आपको काफ़ी लाभान्वित कर सकता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।